Assalamualaikum everyone. I hope you're all having a great quarantine time and life is treating you all very well. This is Sir Yastoor over here with your first recorded lesson of accounting. As we all know that the virus, novel COVID-19, it is getting worse day by day. So that is why we have decided to go for recorded lessons, taking in consideration the health and safety of everyone. So I welcome you all to the first recorded lesson of O3 accounting. As it is quite visible on the whiteboard that we started two topics that were fully completed, and the third one, revenue and capital expense and receipt. Half of this topic was done till our last lesson. We had completed it till the capital expenditure, revenue and capital expenditure. Now, the receipt part is left to be accomplished. And in today's lesson, we'll be comprehensively going through every concept that can be assessed and tested as far as the receipts of a business are concerned. Now, as far as the receipts of the business are concerned, what comes in your mind whenever you listen the word receipt? We first need to know that what receipts actually are. Receipts. All inflows of money relating to a business. मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसका तर्जुमा करें थोड़ा सा उर्दू में, तो आपकी जितना भी पैसा बिजनेस में रिसीव हो रहा है वो आपकी रिसीट्स होती हैं. They are your receipts. Now, for obvious reasons, as far as these accountancy principles are prepared, allow me to tell you that receipts are basically of two types. They are basically of two types. Now let's have a look at them कि ये जो receipts दो किस्म की होती हैं, inflows जो दो किस्म के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? Receipts are specifically of two types, right? Just like the expenditures. We have capital receipts and we have revenue receipts. We have capital receipts and revenue receipts. It's evident on the whiteboard. Now, let's go into the in-depth analysis of both of these, the capital receipts and the revenue receipts. Starting with revenue receipt. Because revenue receipt is one that is mostly tested in our examinations. I'll try to use those markers which are most, prominent on the whiteboard, and just pay full attention to the lesson, because after the lesson we'll be having a question and answer session on this particular lesson as well. So no need to worry about if you're having or if some questions are arising in your mind. You can write them down on a piece of paper, and we can end it at the discuss it at the end of the lesson. Now, coming towards revenue receipt, what is revenue receipt? Let's have a look on the definition. Money earned by a business through selling its trading goods. The definition says that it's very simple. Money earned by a business through selling its trading goods. Now, ये तो पता चल गया वो पैसा कमाया हुआ बिजनेस का कैसे कमाया हुआ, trading goods के through. I hope you can all recall this from your previous brought forward knowledge that what are trading goods. बेटा let me recall it. Trading goods, ये कौन से goods होते हैं?
ये वो गुड्स होते हैं जिसमें एक्चुअली बिजनेस ट्रेड कर रहा होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, if a person owns a factory in which he or she is manufacturing footballs और वो फुटबॉल सेल कर रहा है, तो फुटबॉल्स उसकी ट्रेडिंग गुड्स हैं. अगर एक पर्सन, देयर इज अ पर्सन, ही इज सेलिंग जैकेट्स, लेट्स से लेदर जैकेट्स, तो वो लेदर जैकेट उसका ट्रेडिंग गुड है. इस दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं, वो तमाम के तमाम बिजनेसेस जो अपनी आइटम, जिस आइटम में बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दैट आइटम इज नोन एज अ ट्रेडिंग गुड. अब रूल ये कहता है कि ट्रेडिंग गुड जब भी आप सेल करेंगे एंड the money that is received against the selling of those trading goods would be classified as revenue receipt. It would be classified as revenue receipt. Now, this is one part. To further clarify the concept of the revenue receipt, I would recommend one more definition. That's a very, very simple one. It can actually help us identify the receipts, that whether they are capital or revenue. And what is that second definition? Let's have a look on it. All those receipts which are recorded in the इनकम स्टेटमेंट. भाई सिंपली हमने तो, वो कहते हैं ना कि जज एक मुद्दा ही खत्म कर दे. तो ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर इन अ कोर्ट राइट नाउ, बट स्टिल ऑल दोज रिसीट्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट. भाई कोई भी ऐसी इनकम जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है, कहां पर? इनकम स्टेटमेंट में, जहां पर हम अपना प्रॉफिट फाइंड करते हैं. इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, as you all know. तो वो सारी की सारी receipts are basically revenue receipts. Now, having a look on some of the examples, जैसे कि हम sales record करते हैं, सबको याद होगा ये top most पे ये income record होती है. Sales, उन में से फिर हम cost of sales and बाकी सारे expenses को less करते हैं. तो sales जो basically होती हैं, that is your revenue receipt. Second, discount receipt. आपने अगर कोई discount receive किया है, आपने अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव की है, आपने अगर कोई कमीशन रिसीव की है, ये सारी की सारी रिसीट्स हैं. क्यों? बिकॉज दे आर ऑल इनफ्लोज फॉर अ बिजनेस. तो ये कौन सी इनफ्लोज हैं? ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स वाली इनफ्लोज हैं. व्हाई सो? बिकॉज ये पहली बात है, ये किसी ना किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से पैदा हो रही है. And the second thing is that they are all related to the income statement. Because अगर आप इसके अलावा सेल्स तो सेपरेटली रिकॉर्ड होती है, अगर हम ये तीनों रिसीट्स देखें तो ये कहां पर आती हैं? आप सबको याद होगा कि हम अदर इनकम एक अपनी लिखा करते थे आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट. ये सारी उधर आती हैं. और अदर इनकम ऑब्वियसली किसका पार्ट है? आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है. सो ऑल दोज रिसीट्स व्हिच आर relevant to the income statement are your revenue receipts. I hope it is clear to everyone, and please go through it very carefully. We will now move on towards our capital receipt. देखते हैं जी कैपिटल रिसीट क्या होती है. इसी तरह वो भी कंपैरिजन अगर करें तो बहुत सिंपल होगी समझने के लिए. लेट्स मूव ऑन. So, capital receipt. Let me write down its definition first of all. Inflows of a business which result when a non-current asset is sold. इंतहाई आसान है इंटरप्रेट करने के लिए.
कैपिटल रिसीट एक ऐसी इनफ्लो है जो कि बिजनेस कब रिसीव करता है, इनफ्लोज ऑफ अ बिजनेस व्हिच रिजल्ट व्हेन अ नॉन करंट एसेट इज सोल्ड, मतलब जब भी एक बिजनेस अपना कोई नॉन करंट एसेट सेल कर रहा है, वो सेल की वजह से जो पैसे रिसीव कर रहा है, दैट इज बेसिकली योर कैपिटल रिसीट। अब नॉन करंट एसेट कौन से हो सकते हैं? आई होप यू ऑल नो ऑल दोज नॉन करंट एसेट्स जो कि हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी, आपकी कोई मोटर व्हीकल, आपकी कोई इक्विपमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके नॉन करंट एसेट हैं। और इन नॉन करंट एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं एंड यू रिसीव सम मनी अगेंस्ट देम, तो दैट इज योर कैपिटल रिसीट, बिकॉज ऑब्वियसली ये कैपिटलाइज्ड फॉर्म होती है आपके कैपिटल की, तो उसको सेल करके जो पैसे आएंगे दैट इज योर कैपिटल रिसीट, राइट? This is one thing over here. The other thing is, the other part of the definition, इसको भी identify करने के लिए we have a very very simple solution, जैसे हमने revenue receipt में एक चीज देखी थी। अब वो क्या है? Let's have a look on it. इसकी दूसरी definition देखते हैं। All inflows of a business which are relevant to the, just let me change my marker in a minute, which are relevant to the statement of financial position। मतलब आपकी तमाम इन्फ्लोज जिनका लिंक, जिनका ताल्लुक, जिनकी रेलेवेंसी किसके साथ है? आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ, वो सारी इन्फ्लोज क्या है? आपकी कैपिटल रिसीट है। और यहां पर भी देखा जा सकता है, ये मशीनरी, ये व्हीकल, ये इक्विपमेंट, ये कहां पर रिकॉर्ड होते हैं? ये सारे रिकॉर्ड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सो दैट इंप्लाइज कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रेलेवेंट कोई भी चीज है, that is going to be categorized as your capital receipt। इसकी एक मैं एग्जांपल लिख देता हूं। receipt of बैंक लोन। अब देखें बच्चों, हमने अगर बैंक लोन लिया, आपको सबको पता है बैंक लोन है क्या? आपकी एक नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी कहां पर रिकॉर्ड होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब ये बेशक लायबिलिटी है तो हमारी रिसीट, हमने इसको रिसीव किया है, तो ये रिसीट कहां, इसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा? इसको कैपिटल रिसीट कैटेगराइज किया जाएगा। व्हाई सो? बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो cutting the long story short over here, we can conclude that any item that is relevant to the income statement is a revenue receipt, or any item that is relevant to the statement of financial position is a capital receipt. This is all about its background and its basic concept. I hope this is clear to everyone. Please have a look on it. Then I'll be moving on to the treatment of these receipts, and we'll see, और वो आधे से ज़्यादा वैसे ही हम देख चुके हैं इस लेसन में कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। Okay, as we all know, we basically have two types of receipts. One is capital receipt and the other one is revenue receipt. Now, as I've told you before in the definition, that capital receipt would be recorded or classified in the
statement of financial position. This is one thing. And revenue receipt. All such receipts would be recorded in the income statement as they relate to the trading activities. And we all know that trading activities की जितनी categorization है that is finalized in income statement, और कोई ऐसी चीज जो कि capitalized होती है that is actually a part of the statement of financial position. So this is how receipts are basically treated, right? This is the second part of revenue and capital receipts. Now, moving on into the topic, the third thing that might take place is that we might switch over the effects of the receipts. क्या हम कर सकते हैं? हम जो कैपिटल रिसीट है उसको हम कैटेगराइज कर दें एज रेवेन्यू रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट को हम कैटेगराइज कर दें एज कैपिटल रिसीट. मतलब अगर हम इनको रॉन्गली ट्रीट कर देते हैं तो उसके इंपैक्ट्स क्या होते हैं? What will happen if these two expenditures are wrongly treated? Let's have a look on them. Dear students, let's say, let me just write down the heading, wrong treatment and its result. एक revenue receipt है, and we all know that it is meant to be recorded in the income statement. ठीक है? It is meant to be recorded in the income statement. अब let's say हमने क्या किया है? We have treated the revenue receipt as capital receipt. अब what will happen? इसका एक रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट क्या होगा? देखो, रेवेन्यू रिसीट, पहली बात ये कि इट इज एन इनफ्लो. इनफ्लो का मतलब है ये आपके लिए एक इनकम होती है. अब उस इनकम को अगर आपने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया और कहां पर आपने उसको ट्रीट कर दिया है एज कैपिटल रिसीट, आपने एसेट्स को या किसी और चीज को इंपैक्ट डाल दिया है, तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आएगा वो ये होगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में से लेट्स से अगर आपने कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं की तो आपकी जो सेल्स हैं वो अंडरस्टेट हो सकती हैं. ठीक है? और अगर सेल्स अंडरस्टेट हो जाएंगी या कोई इनकम अंडरस्टेट हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हो जाएगा. अंडरस्टेट, आई होप एरर्स हमने पढ़े हुए हैं, आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज यू मस्ट बी फेमिलियर विद देम. सेल्स अंडरस्टेट होना इज लाइक कम रिकॉर्ड करना, और प्रॉफिट भी अंडरस्टेट होना मतलब कम रिकॉर्ड करना. तो अल्टीमेटली व्हाट्स गोना हैपन, आपकी सारी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगी जब आपकी ये दो मेजर फिगर जो हैं अंडरस्टेट हो जाएंगे. अंडरस्टेट हो, ओवरस्टेट हो, बेसिकली फिगर का डिस्टर्ब होना इज प्रॉब्लमैटिक फॉर अस. तो व्हाट इफ रेवेन्यू रिसीट एंड इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट? तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी सेल्स और आपके प्रॉफिट दोनों अंडरस्टेट हो जाएंगे. नाउ व्हाट इफ द वाइस वर्सा हैपेंस? एक कैपिटल रिसीट को
अगर हम ट्रीट कर देते हैं एज अ रेवेन्यू रिसीट, इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि एज वी ऑल नो कि ये जो आपकी कैपिटल रिसीट है, इट इज मेंट to be recorded in the statement of financial position, SOFP. I hope you all know what does it means. SOFP stands for statement of financial position. और उसको हमने ट्रीट कर दिया एज रेवेन्यू रिसीट। अब ये मतलब रिकॉर्ड हो गई है आपकी इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने का मतलब है या वो आपकी इनकम में, अदर इनकम में ऐड हो गई है, या वो आपकी सेल्स में गलती से ऐड हो गई है। दैट मीन्स इस एरर की वजह से आपने क्या किया है, आपने अपने सेल्स को ओवरस्टेट कर दिया, और सेल्स ओवरस्टेट हो रही हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो चुका है, राइट? So class, this is what happens whenever we treat the categories differently. उनको हम switch कर देते हैं। Finally हमने ये देखा कि अगर capital receipt is treated as a revenue receipt, तो आपकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ओवरस्टेट हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रॉन्ग ट्रीटमेंट एंड द रिजल्ट्स ऑफ दोस ट्रीटमेंट्स। नाउ मूविंग ऑन, आई विल नाउ बी सॉल्विंग सम एग्जांपल्स। इसमें जो आपका मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि आपने बेसिकली, आपको एग्जामिनर कुछ ट्रांजैक्शंस देता है और उन ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या आया वो ट्रांजैक्शंस आपकी रेवेन्यू रिसीट है या आपकी वो कैपिटल रिसीट है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उनको हम फिर देखते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं। बिफोर आई टेल यू द आंसर, आप लोगों ने कोशिश करना है कि मुझे बताएं, या ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी, आप अपने माइंड में उसको जज करें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। सोल्ड सम ऑफिस मशीनरी, हमने ऑफिस की कोई मशीनरी सेल की है और उसके बदले हमें पैसे मिले हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ऑफिस मशीनरी? भाई ऑफिस मशीनरी क्या है? ऑफिस मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट है, और नॉन करंट एसेट को जब भी हम सेल करते हैं तो वो कैटेगराइज होता है एज कैपिटल रिसीट। सी स्टैंड्स ओवर हियर फॉर कैपिटल रिसीट, ठीक है? और ऑब्वियसली ऑफिस मशीनरी रेलेवेंट है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, तो जो चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रेलेवेंट होती है वो आपका कैपिटल रिसीट होता है। नाउ द another example, interest received from bank। आपको एक बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब इंटरेस्ट रिसीव आपका रिकॉर्ड होता है इनकम स्टेटमेंट में, आपकी अदर इनकम में। अब जो भी चीज रेलेवेंट आपकी इनकम स्टेटमेंट से है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट। इट इज योर रेवेन्यू रिसीट, right? Moving on to another transaction, a knife manufacturer sold some knives। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि नाइफ्स बनाता है, उसने सेल किए कुछ नाइफ्स। अब ये ऑब्वियसली ये नाइफ क्या है, उसकी उसकी ट्रेडिंग गुड है, बिकॉज वो उसमें डील कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है इसके अंदर। अब बिजनेस करके जो भी हम गुड सेल करके पैसे कमाते हैं वो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। इट इज योर रेवेन्यू रिसीट, जिसको हम एज सेल्स रिकॉर्ड करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में, राइट? And one more example, received a long-term bank loan। Okay,
लॉन्ग टर्म बैंक लोन कहां रिकॉर्ड होता है? वी ऑल नो ये एक नॉन करंट लायबिलिटी है और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होता है। तो एज आई टोल्ड द रूल क्या था कि कोई भी ऐसी आइटम जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड की जाएगी वो आपकी कैपिटल रिसीट होगी, अगर तो वो एक इनफ्लो है। There you go. This is all about this topic, this chapter. I hope it is clear to everyone. Everyone has understood its basic concept behind and how it is practically implemented as far as our daily basis accountancy is concerned for our business purposes. Well, you are open for any type of questions that you feel that you need to ask from me. Brainstorm your mind, take your time, and think about anything that comes up into your mind whenever you go through this video lesson. The second thing over here is that I have uploaded a practice worksheet along as well, so that you can all be in practice with the topic as well. Go through that worksheet, solve that worksheet, and turn it back to me as soon as you can, whatsoever the deadline is given to you all by the management. I hope everything is clear to everyone. I would suggest everyone to stay safe, stay at home, and avoid going out, maintain social distance so that we can be able to contain the spread of the disease further and be safe from this novel coronavirus. I wish you all a very best of luck and I hope to see you all very soon. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.